Okay, so let's see what is in photosynthesis. What is photosynthesis? हमने पढ़ा है that when plants absorb lights and they have chlorophyll. So in the presence of light in water, what they basically do is they prepare food, which is further used by herbivores and then by carnivores, right? So that's why plants are known as autotrophs. So today let's deal with some of the experiments, which are like five or six in a number. So, देखो, photosynthesis is a physiochemical process and it is also endothermic. Why it is a physiochemical process? Because इसमें जो light energy है that is being converted into chemical energy. And we all know that we need energy to make food. देखो, some when we are when we need food and we need various components from food, जब हम उसमें break करते हैं and उसके लिए हमें energy देनी नहीं पड़ती, but when we are making food from smaller units like carbon dioxide and water to make a bigger unit which is glucose, then we are providing the heat, right? That's what is known as an endothermic process. Now first of all, let us look at the variegated leaf experiment. सो इसमें क्या था, इन्होंने एक प्लांट लिया, एक प्लांट में लाइक वी हैव टेकन सम टू लीव्स. सो एक लीफ को हमने एक ब्लैक क्लॉथ से कवर कर दिया एंड द अदर वन इज जस्ट ओपन इन द एटमॉस्फेयर. इट इज बीइंग getting sunlight, it is getting CO2 from the atmosphere. ठीक है. तो आप जहाँ पे देखोगे, जहाँ पे लाइट नहीं है ना, वो वाली लीफ में स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा. सो बेसिकली वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट टेल्स अस व्हेन देयर इज लाइट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, व्हेन देयर इज मोर लाइट देयर इज द इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, राइट? नाउ द सेकेंड लीफ एक्सपेरिमेंट इज मोल्स लीफ एक्सपेरिमेंट. उसमें क्या था, इन्होंने एक बीकर लिया, बीकर में KOH की soaked cotton balls डाली and he put that leaf in it, right? So what we saw was कि जहाँ पे जो लीफ का पार्ट जो बीकर में है वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ because KOH has soaked all the CO2 which the leaf was carrying. But जब हमने इसको बीकर में डाला तो वो जो लीफ का जो अंदर वाला पार्ट था उसमें से CO2 नहीं रही, ठीक है? तो वहाँ पे फॉर्मेशन का स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ. बट द लीफ का जो पार्ट जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है स्टिल इट इज फॉर्मिंग सम स्टार्च, ठीक है? नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट important example which our NCRT says, the law which experiment which our NCRT says is Priestley's half leaf experiment. इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक क्लोज्ड जार लिया, क्लोज्ड बेल जार. इन्होंने उसके अंदर एक कैंडल डाल दी, एक में माउस डाल दिया, ठीक है? एंड उन्होंने क्लोज कर दिया. देखो, कैंडल जब तक जलेगी जब तक उसका जो प्रेजेंस जो बेल जार के अंदर जितनी CO2 है वो खत्म नहीं हो जाती. एंड माउस विल सर्वाइव ओनली टिल देन जब तक उसमें प्रेजेंस ऑफ जो CO2 है इट्स स्टिल देयर, ठीक है? अब आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट दे फील सफोकेटेड एंड दे विल डाई, ठीक है? Now, in the second case, what he took a candle, he took a closed bell jar, he took a mouse, and he took a plant, right? So, what did this plant do? This plant actually restored the air which was damaged by plants, which was damaged by your mouse and which was damaged by your candle. So this was what Priestley's half leaf experiment says, that he discovered the oxygen for first time. हमें पता था कि we are surviving, we are intaking some gases, but we were not sure which gas was it, right? So we got to know that the gas which we are inhaling which we are inhaling is basically O2 and which we are expelling out is your CO2. Okay. Now the next experiment was of Jan Ingenhouse. उन्होंने ये दिखाया that sunlight is essential for photosynthesis. ओके उसके बाद है जूलिश वॉन शॉक. उसका एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि ग्लूकोज जो हमारा प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स एंड क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में फाउंड होता है, राइट? अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. ओके नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड द सेकंड लास्ट एक्सपेरिमेंट इज इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट. उन्होंने क्या करा था, उन्होंने हमें वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा डिस्कवर करके दिया, एक्शन स्पेक्ट्रम. उसमें क्या था, उन्होंने एक प्रिज्म ली एंड वी नो जब हम वाइट लाइट को पास करते हैं थ्रू अ प्रिज्म इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू 7 डिफरेंट कलर्स फॉर्मिंग विबग्योर, राइट? तो उन्होंने क्या करा, उस ग्लास स्क्रीन पे जहाँ पे सारी लाइट्स आने वाली थी वहाँ पे एक
प्लांट डाला जिस दैट वाज क्लैडोफोरा, तो उन्होंने नोटिस करा कि हर प्लांट पे, तो हर एक पार्ट पे उस प्लांट के जहाँ पे डिफरेंट कलर की लाइट आ रही है, जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, इन हर एक पार्ट पे अलग अलग फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब अलग अलग रेट से, अलग अलग स्पीड से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, राइट? सो उन्होंने क्या कहा, जितनी लाइट मिलेगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। एंड ये सिर्फ दो लाइट्स के लिए था, विच वाज ब्लू एंड रेड। जितनी ब्लू और जितनी रेड लाइट, उतना ज़्यादा फास्ट विल बी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? नाउ द लास्ट एक्सपेरिमेंट वाज कॉर्नेलिस वॉन नील एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या करा, इन्होंने रिसर्च करी अबाउट पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दिस इज ओनली लाइक वन शॉट में आप याद कर सकते हो कि उन्होंने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पे रिसर्च करी, ठीक है? नाउ नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, राइट? देखो, हमें पता है दैट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस